Good morning, 6th class students. How are you? Students, I hope you all are fine. Students, previously we have done in the chapter 10, that is motion and measurement of distances, the standard units of measurement. In that topic we have done that how many meters are present in 1 kilometer, how many centimeters are present in 1 meter, and how many millimeters are present in 1 centimeter. I hope you all have learned this. Now today we are going to learn that how to measure the length of a curved line. Okay students, let us start doing this by activity. To measure the length of a curved line using a thread. Things required: a thread and a curved line drawn on a white sheet of paper. Procedure: take a thread and make a knot on one of its ends. Place the end of the thread with the knot at the beginning of the line denoted by the point P in the figure given in the animation. Hold the initial end P of the thread with one of your thumbs. Put a small part of the thread along the line and leaving the initial end P. Hold the other end of the small part Q with the thumb. Holding the point Q, put a small part of the thread along the curved line up to point, say R. Continue this process until you reach the end of the thread. Mark the thread where it touches the end of the line. Stretch the thread and measure it with a meter scale. The length of the thread is equal to the length of the curved line. The next topic of our chapter is motion. Motion and its type. Motion is the transfer or movement of an object from one place to another place. Yes, it is the movement of an object, or you can say it is the change in position of an object with respect to time. अगर टाइम के साथ बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कि वो मोशन में है. और अगर वो नहीं चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन, देन इट इज़ एट रेस्ट. रेस्ट. नाउ मोशन की डेफिनेशन दोबारा रीड करेंगे. अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन इफ it changes its position continuously with respect to its surroundings with the passage of time. For example, a bus running on a road. जैसे कि एक बस रोड पे चल रही है, एक बर्ड फ्लाई कर रहा है, तो उसकी पोजीशन क्या है? कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है ना टाइम के साथ, तो वो किस में है? मोशन में है. एंड रेस्ट. A body is said to be at rest if it does not change its position continuously. अगर वो पोजीशन चेंज नहीं करता कोई भी बॉडी अपना टाइम के साथ and with respect to surroundings also, then it is said to be at the state of rest. For example, a book lying on a table. एक बुक टेबल पे पड़ी है तो वो अपने आप मूव नहीं करेगी, पड़ी रहेगी ना बेटा, तो वो किस में है? रेस्ट में है. और एक पर्सन है वो इज स्टैंडिंग आउटसाइड द रोड ऑन द रोड, तो वो भी क्या है? ही इज ऑल्सो एट रेस्ट. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. दोनों रिलेटिव टर्म्स है. बॉडी सीम टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट बट मे अपीयर टू बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. अब देखो, आपके लिए एक बॉडी, जैसे कि आप कार में जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल से घर या कहीं भी बाहर जा रहे हैं, तो आप गाड़ी में बैठे हैं, बट आपके लिए बाहर जो ट्रीज़ हैं वैसे वो क्या है? रेस्ट में है, वो उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, बट विद रिस्पेक्ट टू यू, आपके अकॉर्डिंगली, क्योंकि आप गाड़ी में हैं, वो ट्रीज़ दे आर मूविंग, दे आर इन मोशन. एंड अकॉर्डिंगली द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड, अगर वो आपको देखता है, आप गाड़ी में हैं, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू यू आर इन मोशन. बट द टू पर्सन सिटिंग इन द सेम कार, दे आर एट रेस्ट पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. देखिए, ए पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस is at rest because he or she is not changing his
or her position with respect to other passenger or objects in the bus. बस में जो लोग बैठे हैं उनके accordingly every person is at rest because they are not moving and not changing their position. But to an observer outside the bus, जो बस के बाहर है, the passengers and the objects inside the bus, they are in the motion. वो सारे क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं. अब देखो ये ट्रेन है. ट्रेन जब ट्रेन मूव कर रही है तो क्या है? ट्रेन में जो पर्सन बैठे हैं अकॉर्डिंग टू देम द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड द ट्रीज दे आर इन मोशन. बट if the train is at rest, it is not moving, then the person, trees, train, everything is at rest. If the person is moving in the train, then all other things are in the motion. Okay students, next is our types of motion. Types of motion में first of all we are going to read about the circular motion. हाँ जी, circular motion में देखिए ये swing है. बच्चे झूला लेते हैं, सभी आप लेती हो ना बेटा, तो कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन. सर्कल में मूव करता है बच्चे. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन व्हेन इट मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड एक्सिस. जब वो एक एक्सिस के चारों तरफ गोल गोल घूमता है सर्कल में, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज़ इन सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन क्या है? व्हेन द सेम मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. हम उसे क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन. देखो ये क्लॉक है, अभी कितना टाइम हुआ है इसके अंदर? 8:19. ओके 20 होने वाले हैं. बट आफ्टर एग्जैक्टली 1 आवर देयर विल बी 9:19. तो वो जो उसकी आर्म्स हैं, मिनट आर्म, ठीक है, मिनट हैंड और हमारा जो आर हैंड है, ये सारे क्या हैं? ये इक्वल इंटरवल्स के बाद क्या कर रहे हैं? अपने मोशन को रिपीट करते हैं. तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन. देखो अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ कैसे मूव करती है? पीरियोडिक मोशन में. ओके. टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन बेटा, रेवोल्यूशन एंड रोटेटरी. First of all, revolution motion. When a body as a whole moves in a circular path, its motion is called revolution and the body is said to revolve. जब एक body as a whole move करती है circular path में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं revolution. यानी one revolution. अब सन के अराउंड अर्थ का 1 revolution कितने टाइम पीरियड में होता है? 24 आवर्स में. ओके. सो ये इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन. नेक्स्ट रोटेटरी. रोटेटरी में व्हेन अ बॉडी अंडरगोज ट्रांसलेटरी मोशन इन सच अ वे दैट इट्स पार्ट्स कवर डिफरेंट डिस्टेंसेस इन अ गिवन टाइम, इट इज सेड टू हैव रोटेटरी मोशन. जब एक बॉडी के पार्ट्स कवर करते हैं डिफरेंट डिस्टेंस, ठीक है, इन ए गिवन टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रोटेटरी मोशन. देखो कोई भी एक चीज़ है जो कि एक से ज़्यादा मोशन शो कर सकती है. जैसे कि बॉल को अगर आप स्ट्रेट वे थ्रो करोगे तो वो क्या करेगा? कौन सा मोशन शो करेगा? इस तरह के जो स्ट्रेट रोड पे स्ट्रेट लाइन में, जैसे मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स परेड में होती है, ठीक है, मार्च पास्ट होती है, तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. अब आप देखो एक से ज़्यादा मोशन शो कर सकती है. बॉल है, मूव कर रही है, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन भी शो कर रही है एंड इट ऑल्सो शोज रेक्टिलिनियर मोशन. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मोशन. फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अर्थ. Earth revolves around the sun, thus showing circular motion. Okay, and it rotates around the axis, showing rotatory motion. मतलब वो एक्सिस के अराउंड भी घूम रही है, रोटेटरी मोशन भी शो कर रही है, और सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, इसीलिए वो सर्कुलर मोशन भी शो करती है. बोथ द अबव मोशंस आर रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. सो
it shows periodic motion too. Okay, bicycle. When a person rides a bicycle, the cycle and the rider shows translatory motion, whereas the wheels show ट्रांसलेटरी मोशन. जो पर्सन है राइड कर रहा है बाईसाइकिल पे, तो वो साइकिल और राइडर कौन सा मोशन शो करते हैं? दे शो ट्रांसलेटरी मोशन एंड व्हील्स ऑल्सो शो ट्रांसलेटरी मोशन. दोनों ही कौन सा मोशन शो कर रहे हैं? ट्रांसलेटरी मोशन. स्क्रू. व्हेन ए स्क्रू इज स्क्रूड इनटू द बॉक्स, इट शोज बोथ रेक्टिलिनियर एंड रोटेटरी मोशन. वो क्या शो करते हैं? रोटेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन शो करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो बाय दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर 10, that is motion and measurement of distances. Okay students, so revise the chapter, read the NCERT book very carefully and complete your exercise work. Okay students, bye bye, God bless you.